winning our hearts from yours. Bhagyashree ma'am, can we please have a big round of applause for her? A very warm welcome, ma'am. Amen. Say a few words, how you feeling about it, some inspiring words for our women here. A very good evening to everyone, Bhagyashree ji, all the guests on the dais, and my friends, sisters who have come here for the beautiful set of awards just before celebration of Women's Day. In fact, I feel you are all the soul of India. You have shown great resilience in your efforts, in your fight to get what you want in life, to achieve your goals. And I salute you for that. Today is the best day wherein we can celebrate your achievements. And also today, we are felicitating hospitals, which are great state-of-the-art ones, which are great in terms of trained technicians, staffs, and technological advances. So all in all, we salute and celebrate the caregivers, our doctors, our hospitals, and the power of being a woman. The resilience, the patience, the love which we have within, the fights which we put up in our lives, sometimes silently, sometimes fiercely, just to achieve what we aim for. So salute to you, all women, and hope to have a great evening with you. Let me at the onset wish everyone a very, very happy Women's Day in advance. Thank you, Amrita ji, for your kind words, and thank you, Rahul, for inviting us here. I think it's a momentous stage that India is at this time. There's so many women who are moving ahead in every single field. You look around and you see women all around. They are basking in the glory of their achievements. And the men are there standing at the curtains and clapping for them. There can be nothing better than that as we move forward to the year ahead. And I'm sure that men, women will walk side by side, hand in hand, because not only are the women supporting the women, we have men here supporting the women also, which is needed in a society like ours, which began with a very patriarchal society. When we have women, men of today's times supporting the women, putting them forward and saluting them, I think we are right at the birth of a new India, a fantastic world ahead for all of us women staying here in India. And I would say so not only for those who are living in the metropolitan cities, but I have been traveling to the rural India also, and I see कि हर छोटे घर में औरत बाहर जाके कमा रही है, हर इंसान उसकी मदद कर रहा है. And I think today our country, the political scenario is such that we are hoping and we are wishing women to stride forward in every aspect and every field. And I think when we have more women coming into the political scenario, I am sure that they are going to create more avenues, more doors for women, not only in the metropolitan cities but also in rural India. With such a huge populace of Indians, Indian women
who are going to move ahead. It's not too far that our nation, from becoming a developing nation, turns into a developed one. So kudos to every one of you here. Thank you so much. वेल इट्स अ ग्रेट रिकग्निशन क्योंकि इट्स फॉर होलिस्टिक वेलनेस। मेरी जो ट्यूसडे टिप्स मैं लोगों तक पहुंचाती हूं जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। दीज आर वेरी रेगुलर थिंग्स दैट वन कैन डू इन आवर डेली लाइफस्टाइल। और अगर इससे इतना फ़र्क पड़ रहा है एंड इट्स रीचिंग सो wide an audience, I'm really very happy about it. But ma'am, with the powerful women, it's a great tagline for every woman. So इस tagline के बारे में क्या कहना? मैं ये कहूँगी कि औरत हर फैमिली की एक नींव होती है। जन्मदाता बोलते हैं, भगवान के बाद तक औरत होती है। सो पावरफुल वुमेन, वेल ऑल वुमेन आर पावरफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जिस तरीके से आपको हर इवेंट पे हर जगह
प्यार मिलता है, आपके पुराने जितने भी हैं उसे ताज़ा करके अभी भी उन लोग नए बना के उस तरीके से उसे हर गाने को प्यार देते हैं। जी। वो प्यार कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना प्राउड मैं ये कहूँगी कि अवार्ड से कई ज़्यादा प्यार या पावरफुल एक आर्टिस्ट को तब लगता है जब इतना पावरफुल प्रेम मुझे मिल जाता है. सो द फैंस आर पावरफुल इन क्रिएटिंग द स्टार. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मिड डे पावरफुल अवार्ड क्या कहना चाहोगी जब इस तरीके से अवार्ड से आपको जब सराहा जाता है, काम को प्यार मिलता है, कितना अच्छा लगता है? वेल दिल बाग बाग हो जाता है और मुझे लगता है कि वैसे तो हर महिला को सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज हर एक में कोई ना कोई पावर होता है, लेकिन इस तरह से आपकी इंडस्ट्री के लोग, आपके अपने जर्नलिस्ट, आपके अपना एक न्यूज़पेपर हाउस जब आपको इस तरह से वैलिडेट करता है, सेलिब्रेट करता है, बहुत अच्छा लगता है. एक आर्टिस्ट के लिए जब उनके काम को सराहते हैं, उनके मुंह से बोल के तारीफें तो काफ़ी होती है, जब अवार्ड मिलता है वो काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है. तो एक आर्टिस्ट के लिए अवार्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है? जो आप शब्द बोलते हैं हमारे लिए वो भी बहुत मायने रखता है. जो आप हमारे पीठ पीछे प्यार से बोलते हैं कि अरे इनकी फिल्म देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा लगता है. और इस तरह से अवार्ड्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है. अगर बात करें अब फाइनली छावा की, जी. जिस तरीके से उसने इतना नाम कमाया, इतना आगे बढ़ा, बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपके किरदार को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला. कोई एक ऐसा रिस्पॉन्स जो आपके दिल में बैठ गया हो छावा के बाद? मैंने लोगों को रोते देखा है और ऐसे गले लगाते हुए देखा है. सो इट्स बीन छावा ने सच में एक वो वेव है जो आई थिंक हमें एक ऐसी फिल्म की ज़रूरत थी और सबने इसे बहुत प्यार दिया है. और बहुत अच्छा लगता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अहम फिल्मों का हिस्सा रही, जिन्हें बहुत प्यार मिला, चाहे वो वीर ज़ारा हो, चाहे भाग मिल्खा भाग हो, चाहे बदलापुर हो और अब छावा हो. और दोनों ही शायद मेरी मैडॉक के साथ ये बड़ी फिल्में हैं. और छावा इन पर्टिकुलर जब आप अपने मराठा हीरो को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुनिया उस कहानी को देख रही है और इस तरह का रिस्पॉन्स, अभी कल भी मैं किसी स्क्रीनिंग पे गई थी, इट्स जस्ट गोइंग स्ट्रॉन्गर. सो यू जस्ट फील वेरी प्राउड. छावा के बारे में आपको पहले से कुछ पता था या आपने कुछ प्रिपरेशन की होगी? मेरे डायरेक्टर ने बहुत रिसर्च की, राइटर ने बहुत रिसर्च की और फिर हमने वर्कशॉप्स की और फिर उसके बाद ऐसी फिल्म में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आपके सामने है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे ही पहला दिन था मेरा शूटिंग का और हम वो पैलेस का जो सेट था उसके अंदर जैसे ही घुसी और वो पूरा अटायर पहना था रानी का, रानी सोयराबाई का, तो वो लगा कि मैं उस मराठा वक्त में पहुंच गई हूं, जबकि ये कहानी है. और इतनी खूबसूरती से सबने इसकी तैयारी की, चाहे वो सेट हो, कॉस्ट्यूम्स हो, डायलॉग्स हो. आपको बस इतना करना था कि आपको उस किरदार को फील करना था और अब सिंसियरली काम करना था. छत्रपति संभाजी महाराज का विक्की कौशल के लिए अगर एक चीज़ बोलना हो तो क्या? ही आउटशाइंस हिमसेल्फ. बहुत मेहनत की है और बहुत खूबसूरत काम किया है एंड जीवंत किया है किरदार. थैंक यू सो मच. ऐसे और कौन से किरदार में आपको आगे देखने को मिलेगा? मैं अभी तो बंदिश बैंडिट्स आया था, अभी छावा आई, अब इसके बाद में एक और शो आएगा हॉटस्टार के लिए एंड एक फिल्म मनोज बाजपेयी के साथ, एक जिम्मी के साथ. थैंक यू. थैंक्स. स्कूल के अवार्ड मिलने से लेकर अब प्रोफेशनल लाइफ में अवार्ड पे जब इस तरह से सराहते हैं लोग, कितना प्राउड मोमेंट होता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे स्कूल में भी नंबरों से ज़्यादा अच्छा लगता था जब वो एग्ज़ाम शीट पे स्टार मिल जाता था ना, या कोई अवार्ड मिलता था. मुझे स्कूल में मिला था जब मेरे सारे फ्रेंड्स को मैथ्स और साइंस और इंग्लिश के लिए मिला था, मुझे सोशल सर्विस के लिए मिला था. तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई अवार्ड्स बिकॉज एक अच्छी फीलिंग होती है कि आपने कुछ अचीव किया है, आपकी मेहनत ने कुछ अचीव किया है. बिल्कुल. ये अवार्ड भी मिड डे पावरफुल वुमेन अवार्ड है एंड यू आर द बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर, यू नो. थैंक यू. इतना ज़्यादा प्यार आपके हर किरदार को मिलता है, तो कैसे रिस्पांस आप अपने फैन से रिसीव करती है? कुछ इंटरेस्टिंग यू वांट टू शेयर? बहुत अच्छा लगता है जब आपकी इतनी जो आप मेहनत करते हो, क्योंकि जो मेहनत होती है ना वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, वो इमोशनली भी काफ़ी, हम अपनी ज़िंदगी की तो परेशानियाँ होती ही होती हैं, लेकिन हमारे कैरेक्टर्स जो हमारे किरदार होते हैं उनकी भी परेशानियाँ हम लेकर चलते हैं, उनका भी दुख दर्द खून पसीना सब कुछ. और मेरे तो जो किरदार हैं उनकी लाइफ में तो काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है. तो जब वो प्यार मिलता है ना तो एक तो ये लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, पर ऑल्सो आपके किरदारों को समझ रहे हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल क्या हो रहा है कि हम सब इतना मी मैं फंस चुके हैं
कि हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। तो जब किरदारों को आप ऑन स्क्रीन जब आप रिलेट कर पाते हो, जब आप उनकी बातें इमोशन समझ पाते हो, तो लगता है कि लोगों का दिल इज इन द राइट प्लेस। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आपके किरदार काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक सवाल श्वेता त्रिपाठी जी से कि उन्हें कौन सा जॉनरा पसंद है? मुझे एक्चुअली थ्रिलर बहुत पसंद है। जब वो स्टेक्स हाई होते हैं ना, जब आप देख रहे होते हो आपको लगता है कि ओह माय गॉड अब क्या होगा, एक तो वो मुझे बहुत पसंद है। और आई थिंक लव स्टोरीज तो हम सबको पसंद है, एंड आई थिंक लव स्टोरीज की अभी ज़रूरत भी है दुनिया में। थ्रिलर लाइक मिर्जापुर? थ्रिलर लाइक डन डन डन, बिल्कुल। कुछ अपडेट है उस नेक्स्ट सीजन कब तक क्या हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही है जी, हम भी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल हम भी वेट कर रहे हैं। खुशखबरी ये है कि नेक्स्ट सीजन तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ एक फीचर फिल्म भी आएगी। तो हाँ, डबल धमाल होने वाला है। अच्छा, फीचर फिल्म के बारे में बताइए क्या है एग्जैक्टली, कुछ अगर कुछ हिंट मिल सके तो हमें। अपोजिट में कौन है? ऑपोजिट में तो किरदार तो वही रहेंगे जो मिर्ज़ापुर की दुनिया के हैं, और अब उनकी लाइफ में क्या होता है वो हम भी अभी जल्दी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो जैसे ही पता चलता है आपको बताएंगे। क्या मतलब नहीं बताना है? पर एक्चुअली सच में पता नहीं है, अगर पता होता तो थोड़ा तो मतलब मैं कुछ बोल पाती हूँ, खुद ही नहीं पता है। ये तो स्क्रिप्ट की बात हो गई, क्या कुछ अपकमिंग अभी हाल ही में देखने को मिलने वाला है आपकी तरफ से? अभी मैं प्ले प्रोड्यूस कर रही हूँ एक्चुअली, तो मुझे उस चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट है। 10 जून को पृथ्वी में है हमारा शो, तो अगर आप लोग फ्री हो तो प्लीज़ आइए। और एक फिल्म है जो 1 महीने में स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं एक बहुत ही अलग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, और वो कॉमेडी है। यस, तो आई थिंक वो मिर्ज़ापुर और ये काली काली आंखों के बीच में थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा हंसाना भी ज़रूरी है। अच्छा, दोनों में से कौन सा किरदार आपके काफ़ी करीब है अब तक देखा जाए तो मैं मतलब गजगामनी के साथ मुझे ऑलमोस्ट अब 10 साल होने को आए हैं, तो मैं इसलिए गजगामनी गुप्ता तो लब है हमारा। थैंक यू सो मच। A big thanks to Midday for having me a part of the Women's Day celebration season 3. I think it's a great event, and thank you to Amrita ji for taking out time. And it's wonderful meeting women who are strong, who are empowered, and who are spreading the message to do what you feel like doing, follow your passion, and then lead your life. Thank you. Can we please have Miss Noise, everyone, and appreciate the hard work and the journey she's having. पूछना चाहूँ कितना प्राउड मोमेंट है? Yeah, I'm feeling empowered, of course, and powerful also, because I am holding a Midday Award thanks to Midday, and especially Anusha Srinivasan Iyer, नारद PR, एंड मुझे आज डॉक्टर अमृता फडणवीस जी ने मुझे अवार्ड दिया है, सराहा है। तो ऑफ कोर्स वुमेन, अगर एक औरत को सपोर्ट करती है तो अच्छा लगता है। इंडिया की यही खूबी है कि हमेशा औरत का साथ देती आई है, और जब स्टेज पे बुलाकर इतने बड़े पद की, इतने बड़े ओहदे की जो इंसान है, इतनी अच्छी हमारी अमृता जी, उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा है। तो मेरी शाम बन गई है, दिन तो चला गया। और ऑफ कोर्स अच्छी फिल्में बनाती आ रही हूँ, और आप जानते हैं, और बहुत ज़ोरों शोरों के साथ अच्छा काम भी कर रही हूँ। और अपनी फिल्मों का मेरा एक ही ध्येय है, एक ही मेरा गोल है कि अपनी फिल्म को इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाना। तो बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी फॉर दैट। थैंक यू। सी यू मैम। मिडडे पावरफुल वुमेन अवार्ड एज यू आर, कैसा लग रहा है मैम? क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना प्राउड मोमेंट है? इट्स ऑलवेज ए प्राउड मोमेंट, बिकॉज मेरे करियर का स्टार्टिंग मिडडे से हुआ था। जब मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट बनकर मिडडे में आई थी एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वहाँ से यहाँ तक का जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड आई फील वेरी ऑनर्ड टुडे टू रिसीव दिस अवार्ड एज अ जनरल काउंसिल मेंबर ऑफ MESC मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल, एंड एज अ मेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव साइंसेज IICS. It feels very honored to be in the path to make India the world skill capital. Thank you so much. अपने काम को सराहने के लिए एक अवार्ड कितना ज़्यादा मायने रखता है? एक्चुअली अवार्ड से ज़्यादा होता है लोगों की मोहब्बत। जब उसी कंपनी के साथ आपने काम शुरू किया और इतने सालों बाद जब वो आपको ऑनर करे उसी स्टेज पर, तो वो फीलिंग ही कुछ अलग है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड फॉर मी, बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नलिज्म करियर विथ मिडडे एज ए 19-year-old. Thank you. Now. Oh, honestly, I'm just so blessed to be able to, follow my passion and my dreams, which has led me here today amongst so many other incredible women. I'm nobody to tell anyone what to do. I think fitness is a very individual game. I always say embrace your uniqueness. There's only one of you in this world. It's a game of trial and error. Don't be afraid to make those mistakes and just understand what works best for you. And can you tell something for the women who look up to you?
I just want to say thank you so much. The support has been amazing, and honestly, everything I do, it's for the love and appreciation that you've given me. So my journey in this is as much yours as it has been mine. So आपका एक्टिंग डेब्यू कब देखने वाले? Acting debut तो अभी तक पता नहीं. I'm very happy doing what I'm doing, and I'm very blessed to be able to do what I love so much. आपसे एक जानना चाहेंगे कि जब टाइगर श्रॉफ जब साथ आप तीनों बैठते हो तो किस बारे में मेन बात होती है, फिल्मों के बारे में कि खाना. सबसे ज़्यादा खाना. All of us are big foodies at home, so a lot of the conversations are around just food. Okay. Lati, anything from your side for the future for your lovely fans? Anything lined up for me? Honestly, what I enjoyed most about last year was being in the reality TV space with Khatron Ke Khiladi. So I'm looking forward to being part of many more exciting projects in the reality space this year. Thank you so much. वुमेन का अवार्ड मिला है और यहाँ पर सब मेरे ख्याल से सब पावर वुमेन एक साथ मुझे मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. अंदर से लग रहा है कि जैसे मैंने अभी बताया कि पावरफुल वुमेन का अवार्ड मिल रहा है, तो एक पावरफुल वुमेन बनने के लिए उसके पीछे बहुत सारी पावरफुल वुमेन उसके होता है ना, उनकी ताकत उनके साथ होती है. तो बहुत खुशी हो जब कभी मैं ज़िंदगी में खुद को कमज़ोर महसूस करूँगी, तब मुझे ये अवार्ड याद दिलाएगी कि नहीं यार, तुझे पावरफुल वुमेन का अवार्ड मिला. बट जब ऐसे अवार्ड से सराहा जाता है मैम, एक तरह से ये अप्रिसिएशन है वुमेन्स के लिए कि उनके काम को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, उनको खुश मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं उस तरीके से और आगे करते जाए. इस तरीके का अप्रिसिएशन ये अवार्ड के थ्रू मिल रहा है उन लोग को, तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे लगता है मेरा मला वाटतं माझं खूप वेगळं मत आहे. मैं बीच में मराठी भी बोलूँगी. हाँ चालेल. ये तो हम लोग फिल्मों में काम करते हैं, काइंड ऑफ आपको लगता है ना सेलिब्रिटी है, इसलिए नहीं, इसलिए हम यहाँ पर है. लेकिन ऐसी बहुत सी वुमेन्स हैं, औरतें हैं ना, जो हमसे भी बहुत पावरफुल है, जो बहुत कठिनाइयों का सामना करके आगे जा रही है. तो मुझे लगता है ना ऐसे अपनी लाइफ में बहुत सारी है, उनको देख के हम कोशिश कर रहे हैं, बस उनको कोई पहचानता नहीं है. तो उन सब है ना, उनकी त्या सगळ्यांच्या वतीने हा खरं अवॉर्ड मला घ्यायला. लास्टली और क्या कुछ अपकमिंग आपकी तरफ से देखने को मिला? एनीथिंग इन पाइपलाइन? हाँ कुछ मराठी फिल्में हैं, कुछ हिंदी फिल्में हैं, कुछ सीरीज है, और बाकी क्या और तो घर का काम भी है. थैंक यू. Silence. Ma'am, how does it feel to be the icon? Who's your felicitating So I all the think icons? so there has been a galaxy of icons. You are one of the icons felicitated today, and happy to see such powerful women, empowered women, and being felicitated. That creates ripples among others, inspires others. So a very good awards and platform for women with the Powerful Women Awards, and I'm happy to be a part of it. Ma'am, anything you want to tell to women of today to inspire them? You're an icon for them. So I always believe every woman, she has her own positives, her own strengths, her own beautiful colors. I would say let your colors bloom to the brightest, to the most beautiful. And I think so with self-confidence, perseverance, resilience and hard work, you will touch the sky. Thank you so much. Rahul? Screen and reality. Okay. So good to see you, ma'am. Same to you. I'm good to see you too. Strongest on-screen woman. Yeah. जब ऐसा अवार्ड मिलता है तो कितना ज़्यादा प्राउड? बहुत प्राउड फील होता है ऑब्वियसली. स्ट्रॉन्गेस्ट तो थी बिग बॉस में, लेकिन पता नहीं था कि आई वुड बी रिकग्नाइज्ड फॉर इट. तो फील्स गुड टू हियर दिस. सिंघम अगेन जी की बात करें, ये रियलिटी शो बिग बॉस की बात करें, हर तरह से अलग-अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. आप किसमें सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं रियलिटी शो में? सी ये तो मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था, सो इट वाज एन एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली सिंघम अगेन आई एन्जॉयड अ लॉट, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ फिल्म्स एंड टेलीविजन, तो दैट इज़ लाइक दैट्स देयर. सो एंड टू वर्क विद सच अमेजिंग एक्टर्स, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट रियलिटी शो मेरा पहला है, तो
इट वॉज फन, इट वॉज पहले शुरू में वियर्ड था, उसके बाद बहुत मज़ा आया। अच्छा मैम, सिंघम में काम करने का, सलमान के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, और दूसरी तरफ जो बिग बॉस में थे कितने सलमान डिफरेंट थे दोनों जगह पे? सिंघम में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट ना, बिकॉज मूवीज़ में क्या होता है, इट्स मोर रिलैक्स्ड और इट्स एक्टिंग है। रियलिटी शो में जब वीकेंड का वार होता था तो ऐसे लगता था ओके हमारी मदर सिस्टर होने वाली है। सो वो नर्वसनेस पहले ही होता था। तो पहले मैं हमेशा वीकेंड का वार में, ये मैंने सलमान को भी बोला है कि व्हेन आई यूज्ड टू सिट नो, आई यूज्ड टू सी हिज मूड इज गुड और बैड। इफ हिज मूड वाज बैड आई यूज्ड टू लुक डाउन, एंड व्हेन हिज मूड वाज गुड आई यूज्ड लाइक स्माइल। तो वो बोलते भी थे सारा, एंड आई एम लाइक ओके इट्स गुड। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो पिछली बॉन्डिंग जो थी सिंघम वाली वो काम आई वहाँ पे भी? हाँ काम आई। लेकिन सिंघम में आई डिडंट हैव सलमान सर, सो ऑब्वियसली ऑल द अदर्स वर देयर, जैसे रणवीर थे, अजय देवगन, रोहित सर। सो रोहित सर के लिए मेरा थोड़ा वो कंफर्ट लेवल थे जब वो आते थे वीकेंड के बारे में। सो आई वाज लाइक हाय आई एम हियर। एंड फनी थिंग इज वो रिलीज सिंघम अगेन रिलीज हुई जब मैं बिग बॉस में थी, तो बिग बॉस में जब ये आई तो एंड आई सॉ रोहित सर कम, तो दैट वाज लाइक कि हाँ अपनापन फील हुआ। क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें होती है बिग बॉस करने खतरों में। जी एक्चुअली आई डोंट माइंड, लेकिन अच्छा मैं बताऊंगी नहीं मेरे को किस चीज़ से डर लगता है, पता चलेगा वही मुझे मिले। एक्साइटेड हूँ खतरों के लिए, बट लेट्स सी, आई स्टिल हैव टू प्रिपेयर माय माइंड। मतलब आप दिखने वाले खतरों में? शायद, आई डोंट नो। ऑफर्स आए? लेट्स सी। थैंक यू। How does feel मैम कि मिड डे में अवार्ड आया और आपको पावरफुल वुमेन का अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? Well, it's so good that I got this award right on the Women's Day, so I feel so great, and I think a lot of women will be inspired to pursue what they love. Like मुझे जो पसंद था वो मैंने किया और आज मैं यहाँ पे हूँ, तो आपको भी जो पसंद है, आपके जो पैशंस है वो पूरे कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए। सॉरी यामिनी मैम, सारा मैम से अभी मिले, आपका डर लगा? अरे नहीं, वो तो अब तो दोस्त है, अब तो मजाक करते हैं। जब आए, आप जब मिले तो अंदर का जो सिनेरियो, जो चीजें वो सब डिस्कस हुआ कभी उनके? नहीं, वो बीच में ही सॉल्व हो गया था। जब उसका इंटरव्यू हुआ था ना, तो वो मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसमें वो बोल रही थी कि मैं ड्रामा करती हूँ, तो वो सॉल्व हो गया था ना। अच्छा बेटा ड्रामा करती थी तुम, तो वहीं पकड़ी गई थी अंदर ही। अभी बिग बॉस वालों का रीयूनियन हुआ था, उनके वेडिंग एनिवर्सरी, नहीं रीयूनियन हाँ मतलब हुआ था, बट जो फ्री थे, अवेलेबल थे, वो जा पाए, और जो जिनके कमिटमेंट्स थे वो रह गए कि कुछ भी किसी का कुछ तो मतलब काम मिल रहा है, काम मिल रहा है। काम है। टचवुड, ऊपर वाले के, बस ऊपर वाले का शुक्राना है। क्या आने वाला है? नहीं वो नहीं बताऊंगी, मेरा खराब हो जाता है, एक बार भी मुंह से उगल दो तो खराब हो जाता है। नहीं तुम्हारे सामने उगलने पे तो दुनिया को चला गया, मेरे को तो बड़ी जल्दी ऐसे हो जाता है। नो। तो आप मानती है ऐसे? हाँ मेरे को बहुत ज्यादा लगता है कि मेरा तो, अगर मैं बस किसी एक को भी बोल दूँ ना, वो होता ही नहीं है, खराब हो जाता है। कुछ हिंट दे दो आपके फैंस को। नहीं मैम, काफी बेसब्री से इंतजार करते रहते आपके फैंस, इंस्टा पे कमेंट्स देखिए आप कि क्या है नहीं है, दैट्स व्हाई आप फैंस को तो ना नहीं बोल सकते कोई भी एक्टर। तुम्हारे यहाँ हूँ ना, बस बहुत है। बस दुआएं करते रहोगे। अच्छा किस तरह का रोल क्या है, मूवी है कि नहीं, कुछ नहीं बताना मुझे, नहीं बताना, सॉन्ग है? नहीं बताना तो हिंट मिल सकता है? नहीं बताना प्लीज, नहीं बताना। मतलब एक चीज अभी उगलती थी, वो खराब हो गई खराब। क्या खराब क्या हुआ? नहीं बस हो गया। प्लीज। एक लास्ट में जाना चाहिए, आपको मिला एक बेस्ट फैशन अवार्ड, आइकॉन फैशन की बन चुकी है, पर आज सोशल मीडिया के दौर में सो बात करूं? So first of all, I'm extremely thankful for Midday, for this particular recognition, and I continue. This particular recognition is given me for an iconic services in information technology sector, and I will continue to strive to with lot of dedication as usual, to contribute more and more towards this particular sector. Once again, thank you so much, Midday, for this recognition. Thank you. And what can be, the most pride moment when it's offered on, the Women's Day. So once again, thank you, Midday, for all this contribution. Thank you. अच्छा लग रहा है। आई एम सो एक्साइटेड कि ये अवार्ड मिला है। थैंक यू मिडडे, थैंक यू माय फैमिली हु बिलीव्ड इन मी कि मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। अगर परिवार साथ है तो दुनिया आपके साथ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है।
थैंक यू। इस तरह से अवार्ड मिलना, ऐसे आगे के काम को सराहना, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सो मिड डे जैसे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू नो दे आर प्रमोटिंग एंड फेलिसिटेटिंग पीपल जो अच्छा काम करते हैं, बहुत ही बड़ा अच्छा कदम है एंड हमारे जैसे लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अभी मैंने जो हैरत किया उसके लिए मुझे ये मिला है, सो बिग थैंक यू। एंड अभी और काफ़ी प्रोजेक्ट्स आने बाकी हैं। कलम और कलाम के साथ में यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे बहुत आगे जाना है। अभी तो पन्ने शुरू हुए हैं, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। या सो एक चीज़ मैं जो सबको बोलना चाहती हूँ, स्पेशली वुमेन ऑफ इंडिया, कि आप खुद की फेवरेट आप खुद बने। जब तक आप खुद को नहीं प्यार करेंगे, आप आपके काम को नहीं प्यार करेंगे। सो दैट्स वन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन। आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 50+, एंड दैट्स अ बिग थिंग। आई मीन, यू नो, एवरीवन शुड स्टार्ट व्हेनेवर दे फील। कभी भी लेट नहीं होता है। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एनी टाइम, व्हेनेवर यू फील दैट नाउ, येस, नाउ इज़ द टाइम यू कैन डू इट। थैंक यू। रोल कौन पूछ रहा है क्वेश्चंस? मिड डे पावरफुल वुमेन 2025 आपको अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहना चाहिए? कितना ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है जब इस तरह से सराहते हैं आपके काम को? बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है एंड आई नो मेरा अवार्ड उधर है बट इट्स ओके। एंड बिकॉज मैंने अपनी मॉम को देखा है, आई एम इंस्पायर्ड बाय माई मॉम। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, यू नो, सिंगल मदर right now she is, so she is raising me and powerful woman is something जो आप अंदर की strength होती है वो बाहर लाते हैं and I'm very happy कि मेरे काम को इतना सराहा गया and everyone loves it and I'm so happy to get this award for midday and powerful women। देश आगे बढ़ रहा है, women आगे बढ़ रही है। अवार्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए? बहुत, बिकॉज आपको एक वैलिडेशन मिल जाता है कि जो भी आपने काम किया है दैट इज़ एक्चुअली बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस। सो अवार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एंड एवरी आर्टिस्ट थ्राइव्स फॉर इट। If you want to perform any genre, so anything your favorite? Oh, I love thrillers. मैंने अभी भी थ्रिलर की थी, खोज, and अब I am manifesting more thrillers in my life, so let's see. Anything in pipeline from your side? Yeah, many more to come and touch wood. You're gonna see me a lot this year. Lastly, Women's Day wish from your side. Happy Women's Day to all men and women, because without men, women are nothing, and without women, men are nothing. Thank you. Thank you so much. How does it feel organizing the Midday Power Women Award, being the man here? This is my 3rd edition. We started this some 3 years back, and I also have females at my place, like my mom, my wife. So the energies and everything comes from there only. So whether it is food, whether it is a thought, people tease. आदमी लोगों की एक फितरत होती है ना, वो एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं कि तेरी बीवी ऐसी, मतलब कुछ कमेंट कर देते हैं। बट आइडियली देखने जाएंगे तो जो बीवियाँ बोलती है, जो माँ बोलती है ना, वो 100% सच होता है। सो द थिंग इज़ यू शुड बिलीव इन देम, एंड ये एनर्जी जो मुझे आई है या मुझे जो थॉट आया ना करने का, ये मेरे घर से ही आया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। एंड आपने देखा होगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इतने ब्यूटीफुल थे। फीमेल्स को या मेल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं ब्यूटी में। आइडियली ब्यूटी जब वो होती है जब वो लोग काम करते हैं, जब बोलते हैं ना, उसके अंदर वो ब्यूटी होती है। सो आदमी को आइडियली वो चीज़ें देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Amrita Fadnavis ji has been a staunch supporter of Midday Power Women. How do you feel every time she comes and empowers your women? So I would say, एक इंडस्ट्री के अंदर जैसे गॉडफादर या कुछ होता है ना, तो शी इज़ लाइक दैट। वी स्टार्टेड दिस इन द ईयर 2016, जहाँ पे मैंने मेरा पहला इवेंट किया था, एंड शी वाज द चीफ गेस्ट ऑफ माई इवेंट। और मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी इवेंट के अंदर वो एज ए चीफ गेस्ट नहीं रहे, वेदर मैंने इंडिया में किया हो या मैंने दुबई में किया हो, वो हर जगह पे उन्होंने अपना प्रेजेंस दिया है। और ये इवेंट भी उनको आज, जैसे आप लोगों को पता था, उनको जाना था नागपुर, बट उन्होंने स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मिड डे के लिए टाइम निकाला। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर। Okay, so it's all about midday. So good to see you, ma'am. So thank you Midday for actually inviting and inspiring us for doing all of these good work, and thank you so much once again. And I would say that women are actually the pillars of the society, so इसीलिए हमें women emotional well-being पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. And happy International Women's Day in advance to all the lovely women out there. Thank you. This is Dr. Anjalika Atre, consultant psychiatrist. Thank you. Hi, thank you so much Midday, and thank you Amrita ma'am
for this recognition. I feel very encouraged and blessed for receiving this award. I'm truly very happy today. Thank you so much.